मंगले शिवे सर्वात छात्रिके शरण्ये तरंबके गौरी नारायणी नमस्ते. Means, O Lord, O Gaurima, let us bestow with your blessings, good blessings to learn more and more for us. So we'll start with the taking opportunity to thank our parents, our teachers and my dear students. My teachers who have supported in the complete lockdown to all of us. The parents, those who framed a bridge among us and the students to fill the gap of distance. Then my dear students who supported us by learning all the things we wanted to make them learn. So thank you so much all of you. आप सबका जो यहाँ पे उपस्थित हैं अभिनंदन और कोटि कोटि धन्यवाद. आज हम सब लोग यहाँ पे हैं एक ऐसी पॉलिसी डिस्कस करने के लिए that comes into existence after 34 years, NEP 2020, जिसने हमें ये हक दिया कि हम अपनी एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी के हिसाब से जी सकें. एजुकेशन मीन्स not learning, not teaching, but to live with. That makes us strong to face all the challenges of life very strongly. So let us start with discussions on NEP 2020 so that we all will be able to know the depth of the system to overcome the difficulties we have faced in the previous time and to make our education system more and more strong. So we start with our school activities we have done in this lockdown. In lockdown, everything was closed, but not education. Our teachers have worked for 24 hours. The teachers who are not tech savvy, they'll learn more than students to make them strong in this field too. So all the activities we have done this lockdown make our relationship, our bond strong with the parents, with the family, with the society and the students. For NEP, let us start with the vision of the policy, that is to develop an education system deeply rooted in Indian ethos, embedded with the culture. The curriculum and pedagogy to develop a sense of respect towards fundamental duties and rights, develop a sense of pride and respect for the country, sustainable development, global well-being as global citizen. All the students will get the opportunity to get education from anywhere. So key principles of NEP are respect for diversity and local context, emphasis conceptual learning, understanding, experiential learning, unique capabilities, critical thinking and creativity, continuous review, use of more and more technology and continuity in participation in every sphere of life, in every type of activity. Transforming curricular and pedagogical structure. This is the base root of the system. New pedagogical and curricular structure of school education 5 plus 3 plus 3 plus 4. The system that we were having, हमारे पास जो अब तक system था 10 plus 2, 10th तक की, then plus 1 plus 2 plus 2. Now the system will be, अब ये जो system जाएगा, ये जाएगा foundational stage, pre-nursery to second for 5 years, preparatory में 3 years, middle में 3 years, 9 to plus 2 4 years, 5 plus 3 plus 3 plus 4. जो kindergarten section, wing, classes, preparatory stage हम लोगों ने पहले consider नहीं की थी. We are considering that as foundational stage now. Foundational से preparatory, then middle, then secondary stage. Then shift to competency-based teaching, learning and assessment. Competency-based means we are now introducing not only theoretical things, but we are shifting towards experiential learning as well as vocational trainings. In the next step of NEP, we will see that we will have 10 bagless
days in this curriculum. That will be to introduce the vocational training to the students. After this 5 plus 3 plus 3 plus 4, we will shift to explanation of these all the content. Foundational stage, as we have discussed, pre-nursery to second. What will be done in that? There will be more hand-on practice. Activities. Age will be 3 to 8 years. In this means 5. We have discussed. इसमें जो एक्टिविटीज़ जाएंगी वो प्ले और एक्टिविटी बेस्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों की मोटर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. पेडागॉजी ऑफ लर्न अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फोकस ऑन गुड बिहेवियर, कर्सी, एथिक्स, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन एंड क्लीनिनेस, जो हिंदुस्तान का कल्चर रहा है हमेशा से. दैट वी विल इंट्रोड्यूस इन एजुकेशन सिस्टम टू मेक देम मोर स्ट्रॉन्ग. फोकस ऑन टीम वर्क एंड कोऑपरेशन. ज़्यादा फोकस रहेगा कि जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ पे एक टीम काम करे, जो स्पिरिट है वो कंपटीशन से हटके हेल्थी स्पिरिट में कन्वर्ट हो. देन प्रेपरेटरी स्टेज 3rd to 5th. एज विंडो विल बी 8 to 11 years. ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम प्ले बेस्ड लर्निंग टू मोर फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग. यहाँ पे द बेस वी हैव फाउंड विथ, हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़, प्ले मेथड्स दे रहे थे. अब हम उनको थोड़ा सा फोकस उनका स्टडी एकेडमिक्स में करेंगे. इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग, वेयर द टीचर एंड द स्टूडेंट्स विल एक्टिवली पार्टिसिपेट. दोनों ही तरफ से पैसिव लर्निंग नहीं होगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी दोनों की. इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेजेस, साइंस एंड मैथमेटिक्स. जो पहले सिर्फ न्यूमेरिकल में चलता था वो अब सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. एम्फेसिस ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जो सोशल स्किल्स भी हैं, एजुकेशनल स्किल्स भी हैं हमारी. स्ट्रेंथ ऑन डेवलपिंग ऑफ स्किल्स ओनली. देन मिडिल स्टेज, दैट विल बी क्लास 6 to 8. इसमें जो एज है हमारा वो रहेगा 11 से 14 साल. सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागॉजिकल एंड करिकुलर मैथडोलॉजी. Subject teaches for learning, discussion of the more abstract concepts in each subject across the sciences, mathematics, art, social sciences and humanities. How? जब हम कोई भी क्लास लेने जाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसमें टीचर क्लास में गया, लेक्चर दिया, क्वेश्चन आंसर्स लिए, दैट्स ऑल. अब हम कहते हैं क्लासरूम डजंट मीन सिटिंग ऑन बेंचेस, डेस्क, टेबल्स, चेयर्स एंड स्टडिंग द करिकुलम. नो. व्हाट इज एजुकेशन? मुझे यहाँ पे जो एक स्टार्ट देना है वो एक्टिविटी से देना है जिसको वो फील कर पाए. सपोज आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द एरोप्लेन्स, टाइप ऑफ एरोप्लेन्स और फ्लाइंग क्राइटेरिया. सो व्हाट विल वी डू? मुझे उन्हें एरोप्लेन यहाँ पे शो नहीं करना, बुक में शो नहीं करना. लेट देम मूव अराउंड द क्लास. वो अपनी एक्टिविटीज को उस तरह से शो करें कि वो उनका फोकस क्या कह रहा है, उनकी स्टडी क्या कह रही है, उनकी इनोवेशन जो है वो क्या हमें शो करती है. सो दैट चांसेस विल बी गिवन इन द क्लासेस. दैट इज दैट वी विल गिव मोर कंसंट्रेशन एंड फोकस on their hand-on activities, on their own perceptions, on their own innovative ideas. Next stage will be high school secondary, 9वीं से 12वीं तक. Dear teachers and my dear parents, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज हम मानते हैं, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज हमारी फाउंडेशनल से शुरू हो जाती है. पर यहाँ पे आके हम लोग इतना फोकस्ड होते हैं कि हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए. लेकिन अब इस एजुकेशन सिस्टम में वो एक्यूरेसी जो है वो थ्योरेटिकल ग्राउंड से हटके एक्यूरेसी, परफेक्शन इन प्रैक्टिकल ग्राउंड विल बी देयर. 4 years of multidisciplinary study, multidisciplinary. After that 4 or 5 or 6 subjects we are having in that class. उसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग स्किल्स, कुछ वोकेशनल स्किल्स, कुछ टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग will be there. Greater depth, greater critical thinking, greater attention to life aspirations. हम लोग as a parents, as teachers, as students जो पढ़ते हैं वो लाइफ में ये नहीं जान पाते कि इम्प्लीमेंट कहाँ पे. सो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब 6th स्टैंडर्ड से शुरू होती है, ताकि बच्चे इस स्टेज तक आते आते कॉन्फिडेंट हो जाएं दैट
विच फील्ड दे वॉन्ट टू चूज, उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बाय मीन्स ऑफ सब्जेक्ट्स। नाउ इन +1 एंड +2 हम लोग स्ट्रीम चूज करते हैं, आर्ट्स, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड कॉमर्स, जिसमें एक बाउंडेशन है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, वो बाउंड्री एनईपी में खत्म होगी। अब अगर स्टूडेंट चाहे दे विल हैव द ऑप्शन टू टेक मोर सब्जेक्ट्स, मुझे बायो के साथ होम साइंस लेना है, आई कैन, मुझे पॉलिटिकल साइंस के साथ केमिस्ट्री पढ़ना है, मैं पढ़ सकती हूँ। सो बच्चों के पास चॉइस होगी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके अपने आइडियाज़ को आगे एक सही आकार देने। Exposure to more subjects and enable greater flexibility, more frequent assessment of modules. Assessment modules में there is a written that there will be a board based examination in 3rd, 5 and 8. मतलब ये नहीं कि बोर्ड के पेपर होने हैं, हमें assessment modules में लेना है। That will be the choice of the parents as well as of the students. जब हम इन क्लासेस में आएंगे तो एक कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन असेसमेंट चलेगा। कोई 1-3 घंटे के पेपर में सब कुछ असेस होना क्राइटेरिया एक ट्रेडिशनल थिंग मानी जाएगी। हाइलाइट्स ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, इन दिस वी आर गोइंग टू हैव competency based education, integration of subjects, development of scientific temper, the self-assessing subjects and learning, emphasis on digital literacy, promotion of multilingual teaching। इस सारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, हमारे स्कूल्स में ड्रॉप आउट्स बहुत होते थे। जब हमें चीज़ें समझ नहीं आती तो एजुकेशन बिकम्स बोरिंग समथिंग, तो वहाँ पे ये ऑप्शन और फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी गई है कि वी कैन एक्सप्लेन दैट थिंग्स इन मदर टंग। इंग्लिश मीडियम है, इवन देन वी आर फ्री टू यूज मदर टंग टू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर टू द स्टूडेंट्स। बच्चे को चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। देन मल्टीलिंगुअल, संस्कृत भाषा इंट्रोड्यूस हुई है बड़े अच्छे, हम लोग भाषाओं से अपना करिकुलम बना के उससे खेल सकते हैं। खेलना मीन्स बच्चे को एक फ्रीडम देना कि वो जिस तरफ चाहे एक करियर ऑप्शन लेके अपना करियर सेट कर पाए, लैंग्वेज कहीं भी उसमें ऑब्स्टेकल ना बन पाए। देन वी विल बी ऑन 21st century skills in the classroom। वैसे तो it is really not very much interesting to speaking about 21st century skills in the 21st year of 21st century। हम लोग 21वीं सदी की बात 21वें साल में कर रहे हैं, पर जब जागो तभी सवेरा। तो अभी भी बहुत कुछ हमारे हाथ में है। We will have a lot of technology based, a lot of experiential based, a lot of vocational based subjects in our curriculum now, जहाँ पे हमारे पास डिजिटल लिटरेसी आती है, जहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड्स आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आता है, एथिक्स आते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ एंड फिटनेस, many 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 more things। We are having a bundle of subjects and number, जहाँ पे हम अपना फोकस करके अपने गति को तेज बना के टुडेज सोसाइटी को फेस करने के लायक बन सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी वोकेशनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रेड 6 to 8, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलिस्टिक हेल्थ, डाटा साइंस, सम ऑफ द सब्जेक्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो टेक्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं हम अपने आप को पिछड़ा पाते हैं, वी विल गेट टू चांस टू एक्नॉलेज विद दैट टेक्नोलॉजी फ्रॉम ग्रेड 6 ऑन वोकेशनल लेवल। सिर्फ स्टडीज़ में नहीं, एकेडमिक्स में नहीं, स्टडी करिकुलम में नहीं, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ कंप्लीट करिकुलम रिलेटेड टू द सीनियर ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट। The aim of assessment will be what?
shift from rote memorization skills to formative is more competency assessment, promotes learning and development of students, tests higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity, assessment for learning, optimized learning and development for all the students. This will be underlying principle for assessment at all levels of education. In education, 3 hours test will not be the assessing criteria for the focus, for the concentration, for the mind ability of the student. The skills will be assessed as per. Redesigning report cards to assess holistic development of each child. अभी जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो हमें बताता है आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स मीन्स पासिंग मार्क्स, हमने एक पासिंग क्राइटेरिया बना लिया, देन हाईएस्ट मार्क्स जितने बच्चे ने स्कोर किए एंड वी आर जजिंग द स्टूडेंट्स ऑन दैट बेसिस। अब जो हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो रीडिज़ाइन होके होलिस्टिक बनेगा 12-14 पेजेस में, जिसमें ना सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर हम वोकेशनल स्किल्स, डेवलपमेंट स्किल्स, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मीन्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट क्राइटेरिया को असेस करके एक रिपोर्ट कार्ड शो करेंगे। करिकुलर इनिशिएटिव, आर्ट एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जो हमारा ट्रेडिशनल टाइम टेबल था जिसमें हम ट्वाइस अ वीक गेम्स पीरियड देते थे, 40 मिनट्स मैंडेटरी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम देते थे, पर फिजिकल एजुकेशन टीचर इज फ्री फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फिजिकल एजुकेशन पीरियड इज फ्री फॉर ऑल सब्जेक्ट्स रिवीजन, कोई नहीं है चलो ये करा। नाउ द मोर फोकस इज ऑन आर्ट्स एंड स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, बिकॉज जो बच्चे का माइंड डेवलपमेंट है वो इन चीज़ों को इतनी तेज़ी से गेन करता है कि बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं कर पाता। तो सारी एजुकेशन एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ गई जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट्स कमतर या कोई भी ज़्यादातर नहीं है, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन द सेम स्केल। Principal as pedagogical leaders and preparation of annual pedagogical plans, implementation of experiential learning pedagogies like arts, sports, integrated storytelling and gaming, mathematics and Hindi at 2 levels, English and Sanskrit will also be introduced at 2 levels from the session 21-22, introduction of 9 vocational courses, very important, of 12-hour duration in classes 6 to 8 in 2020. लॉकडाउन में हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ और सिखाई, that when we people are not in touch with each other in the campus, how to maintain communication, that is also a skill. पेरेंट्स ने बहुत अच्छा ब्रिज बन के हमें सपोर्ट किया बच्चों तक पहुंचने के लिए। स्टूडेंट्स एंड टीचर पढ़ा भी रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई किस लेवल पे जा रही है डिपेंड्स अपॉन ब्रिज ऑफ द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर पाए। और क्योंकि पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बच्चे बहुत अच्छे आकार में एजुकेशन को लेके जा पाए इतने टफ टाइम में भी। ये जो एक स्किल है, सोशल स्किल, पेंडेमिक में जो हमारे माइंड को एक्टिव करती है, उसका हक और शार्पनेस भी हमें NEP 2020 दे रही है। सो विद द होप, नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे सभी की लाइफ में एक न्यू रे ऑफ होप लेके आएगी। आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स ऑल द टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव नॉलेज ऑफ इन डेप्थ क्राइटेरिया कंटेंट ऑफ NEP, ताकि जिस सोल से ये बनाई गई है उस सोल से हम इसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।